पिछले क्वेश्चंस में चैप्टर्स में सॉल्व कर लिए थे तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यू क्वेश्चंस. ओके, in this questions we can see this one is given that there are 200 rupees. This one is 200 rupees means p is given, principal is given 200 rupees. Okay, and what is saying time is given for 3 years and rate is given 4%. Okay, now in this question it is saying that 200 rupees in 3 years for 4% per annum रिकंड एनुअली लागू किया गया. ठीक है, मतलब कि 200 रुपए को 3 साल के लिए 4% की ब्याज पे जो है लागू किया गया है, 4% ब्याज पर दिया गया है. तो आपने क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट CI को निकालना है. ओके, so this one is will be very easy. Now let's solve like this one questions. How will you solve? Now you know that I think you may have written questions or taken as SS. Now go for next. Okay, तो total 3 years के लिए निकालना है for first year. Okay, for first year we are going to find this one. For first year SI1 is what there is given P 200 and R is given 4. तो 3 साल के लिए ले रहे हैं. टोटल इसको हम 3 साल में डिवाइड कर रहे हैं. 1 + 1 + 1. ओके, सो फॉर फर्स्ट ईयर आई एम टेकिंग 1 कंप्लीट ईयर, 1 ईयर, एंड दिस वन इज व्हाट 100 ईयर, 102, and this one will be what 8. Okay, so first year I am getting SI1 is 8 rupees. So what is the amount after 1 year? Amount after 1 year will be P plus SI1, and this one is what 200 plus 8. So we will have 208 rupees after completing 1 years. Okay, now go for second years. Okay, for second year then we know that for second year this one A will be as a P2 means principal amount. This one amount for first year will be the principal amount for second year, and so I'm writing here P2 is equal to what 208 rupees, and time for 1 and rate is same, so SI2 is equal to what 208, and time P or R is what 4 1 upon 100. Okay, so if we will divide this one by 100 then we will have a 2.08 multiply by 4. 4 8s are 32, 4 zeros are 0, 3, 4 2s are 8. So we will have their SI 8 rupees 32 paisa. So what is the amount after completing 2 years? Amount after completing 2 years we will have 208 plus 8.32 rupees. This one will be what 0.328816 and 01 and 216 rupiah 32 paisa after completing 2 years. So this one amount will be the principal amount for next third year. So I can write here that principal for third year is what rupees 216.32, and rate is same along all year. This one is what 4%. So I can find here SI3. SI3 is what P is given 216.32 and 4 multiple 1 upon 100. Okay, so what will we have? We will have here if we will multiply this one, then this one will be what 2.1632 multiply by 4. We will have 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 6s are 24, 1 25, 4 1s are 4 2 6, 4 2s are 8. So SI3 is what 8 rupees 60 paisa 65 paisa a month after third years. Okay, so we will have a total amount after completing total years. So what is the amount? Amount will be here amount. What is the amount? So amount will be here 216 rupee 32 paisa plus 8.6528. Their amount will be what 28527 639 8614 1 2 224 rupiah 97 paisa, nearly about 225 paisa. But in the question it is asked what is the
CI, compound interest. So what is the compound interest? You can see there is what 8 rupees for here, and 8 rupees 32 paisa here, and near about here 8 rupees 65 paisa. We will add this one. Otherwise we know what is the formula. What formula is there? A3 final amount minus original amount. Okay, A3 is our final amount. Final amount is given 224.9728 minus original amount is what given? Original amount is given 200. Okay, principal amount it was in the starting, so I'm subtracting this one 200.0000. What we will have? We will have a 24 rupees 97.28. So we can write this one. This one will be our rupees. Okay, I think there is nothing a problem to solving like this one questions. If you have a like this one questions, then you can solve this one in a very easy way without any problem. Okay, so what is the total rupees? Our total rupees will be 24 rupees 97 paisa, nearly about 25 rupees. Okay, so if you don't have any problem, then you can solve like this one question. 316 3 years for 3% per annum reckoned annually, and similarly for this one कि ऐसे ही क्या कर सकते हैं हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें दिया गया फिर यहाँ पे 7,000 रुपये 3 साल के लिए 4 मंथ के लिए 5% पर एनम पे. तो आई थिंक यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 3 साल तक का सॉल्व कर लेंगे, फिर चौथे साल के लिए टाइम जो रहेगा 4/12 ले लेंगे, यानी 1/3, एंड यू कैन सॉल्व दिस वन एंड ऐड ऑल, देन यू विल हैव द आंसर्स. ओके, तो आज के लिए जो है कोई दूसरा क्वेश्चंस लेते हैं कि कोई अच्छा ही क्वेश्चंस लेंगे जो कि मे बी कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ही होगा एग्जाम की दृष्टि से भी, और क्वेश्चंस जो पूछे भी जाते हैं. ओके, तो आपकी क्लासेस बोर होने वाली नहीं है. अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो बोर नहीं होंगी. बाकी क्या इंटरेस्टिंग वीडियो का क्या है, कोई फिल्म तो है नहीं कि आपको यहाँ पे बांध के रखा जा सकता है. ओके, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए. क्या कहता है क्वेश्चंस में, ध्यान से देखते हैं. क्वेश्चंस में कहता है कि अ मैन बारोस, एक आदमी उधार लेता है 2500 रुपए का 5% के सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए, और जल्द ही वो क्या करता है, लेंड कर देता है, दूसरे को उधार दे देता है. एक तो बारोस करता है खुद उधार, फिर वो सारे रुपए को दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है. वो लेता तो सिंपल इंटरेस्ट पे है, लेकिन जो दूसरे को वो व्यक्ति उधार दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है. सेम रेट पर ही देता है. कहता है कि व्हाट इज द गेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद उसका गेन क्या होगा नियरेस्ट रुपीज में बताना है. जैसे कि समझ लें कि ये आपने क्या है कि ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पे क्या किया इसने उधार खुद ही बैंक से क्या किया 2500 को उधार लिया. ओके, और फिर इसने क्या किया कि यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति को क्या किया, उधार दे दिया. समझ लो कि यहाँ के पंजाबी बच्चे का एक नाम मुझे आ रहा है, सुपनजीत ने लिया, और दूसरा ये तनराज सिंह है, इनको दे दिया, जो कि अब काफ़ी क्लासेस चेंज हो चुके होंगे सेम क्लास के बच्चे को. तो देखना है कि इनकी बिजनेस कैसे क्या होती है, और ये देखना है कि अगर बच्चे कोई पढ़ते हैं तो सुपनजीत सिंह और तनराज सिंह की तो बातें क्लास में करेंगे. ओके, सो नाउ गो फॉर सुपनजीत की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट पर बैंक से उधार लिया है, फॉर 2 ईयर्स के लिए लिया. तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PRT/100. सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट की जो क्लू की बात करें, निचोड़ क्या होता है, ये इसको पता है इस बंदे को कि प्रिंसिपल नॉट चेंज. अगर जहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, प्रिंसिपल जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे जब तक का हो. और तनराज ने लिया है तो इनको भी पता है कि प्रिंसिपल जो है वो क्या है, चेंज होता है. ठीक है, इनके केस में प्रिंसिपल चेंज होता है. कब? जब इन्होंने क्यों इनके होता है, क्योंकि ये CI पे लिए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया, और ये SI पे बैंक से लिया है. ये आपकी कोई बैंक किस है, बैंक से जो उधार लिया है वो बंदा ये है सुपनजीत सिंह, और जो उधार दिया जिसको CI पे इसको दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा. ओके, so I'm going to directly find for 2 years. So what is the rupees 2500? This one is given 2500 at 5%. 5 for 2 years upon
100. Okay, so this one is what 25, 5 to 10, this one is what 250 रुपीज़. ओके, तो इन्होंने जो सुपन ने लिया है बैंक से उधार, तो इनको फॉर आफ्टर कंप्लीटिंग 2 year दे विल हैव टू पे टू बैंक 250 rupees in extra. Okay, means total how many rupees he have to paid to bank? He have to pay to bank 2500 प्लस 250. ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया है. ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये तनराज जी को कितना पे करना पड़ेगा. ठीक है, आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं. इन्होंने किस पे लिया है? CI कंपाउंडेड एनुअली. ओके, तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए चलेंगे तनराज जी के लिए. रिस्पेक्ट फॉर दिस वर्ड. ओके, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए बात करें तो फॉर फर्स्ट ईयर में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं. सो वी आर गोइंग टू फाइंड SI1 फॉर फर्स्ट ईयर, PRT upon 100, and P is what? P is given 2500 and R is same rate, so 1 upon 100. This one will be cut and this one will be what? 125 rupees. Okay, now find amount after completing 1 year. After completing 1 year, SI1 2500 plus 125, add this one 5 516 and 2625. This one will be the principal for second year. Okay, for second year के लिए बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? SI2 कितना हो जाएगा? P2RT. This one is what? P2 for second year. Okay, upon 100. What is the P2? 26 25. R is rate 5% time 1 upon 100. So I'm solving directly this one by using calculator. 2625 multiply this one 5. This will come what? 13,125 divided by 100. This one will be what? 131.25. Okay, so this one is the SI2. SI2 is what we are getting from here. SI2 is rupees 131.25. Okay, so amount after completing 2 years, there will be P2 plus SI2, and we know now P2 is what? 2625. We can write 2625 plus 131.25. Add this one 0.25 516 325 6172. So this one is what? 2756 rupees 25 पैसा. तो क्वेश्चंस में कहा गया है कि सेम रेट फॉर द सेम टाइम, व्हाट इज द गेन, व्हाट इज द गेन एट द end of second year, correct to the nearest rupees. करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज में क्या गेन पाएंगे सुपनजीत सिंह जी? चलिए देखते हैं क्या गेन पाएंगे आप. ओके वेट, ओके नाउ ओके सो gain is what? 2756.25. okay, subtract this one, कितना रुपीज इनको पे करना पड़ा? इनको पे करना पड़ा था 2750 रुपये. ठीक है, 2750 रुपये इसमें से माइनस कर देते. 2750 रुपया 0, सो 6 रुपया 25 पैसा. तो फॉर कॉमेडी अगर कहें तो बेचारा तनराज 6 रुपये 25 पैसे के रिक्स पे पूरा साल काम चलाया. और अगर जहाँ ये सुपन तुम्हारा ये रुपया लेकर के भाग जाता तनराज ना, तो तुम्हें पूरे 2500 पे करने पड़ जाते. ये बेचारा भगता तो ईमानदार बच्चा है. 6 रुपये 25 पैसे पे तुम्हें पे कर दिया और तुम पे करते रह गए कितना. ओके
ये भागता तो बेटा तुम्हें इतना नुकसान होता. दिस वन इज द फॉल्ट ऑफ द जोक which you're making your kids. Okay, now go. Okay, we have solved this one already on yesterday. Now go for next questions. आई थिंक यहाँ पे तो समझ में तो आ गया होगा ना कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि आपने कैसे क्या किया. अगर साथ में आप सॉल्व करते चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर सॉल्व साथ में सॉल्व नहीं करेंगे देन इट्स will be a problem. Otherwise go for next questions. Next question is what a man invest 15,000 at the beginning of the every years. Okay, साल के शुरुआत में 15,000 रुपए हमेशा जमा करता है इन अ बैंक एंड अर्न 10% एनुअल इंटरेस्ट, और बैंक जो है उस व्यक्ति को 10% एनुअल इंटरेस्ट पे देती है. कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ द ईयर्स, कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ, और इसको जो है कंपाउंड किया जा रहा है साल के आखिरी में. व्हाट विल बी हिज बैलेंस इन द बैंक एट द एंड ऑफ 3 years. ठीक है, तो कोई बच्चा है तो क्या करता है कि मैंने तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 15,000 एंड ही इज इन्वेस्टिंग फॉर 3 years. रेट इज व्हाट 10%. ठीक है, हर साल के शुरुआत में 15,000 रुपए लगाना है. ठीक है, चलिए तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूछे कि 15,000 रुपए हर साल पे लगाएंगे तो क्या आपका प्रिंसिपल सेम रहेगा, तो प्रिंसिपल आपका क्या होगा, चेंज होगा. ओके, दिस वन इज द नेक्स्ट थिंग्स बिकॉज दिस वन इज आल्सो कंपाउंडेड एनुअली, सो इट्स प्रिंसिपल विल बी ऑलवेज चेंज. ओके, सो फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर फर्स्ट ईयर पे SI1 is what 15,000 P R is what 10 and for first year I'm taking 1 years and divided by 100. ये गया यहाँ से बचा क्या 1,500 रुपए. Okay, so now what is the amount after completing 1 year? Amount after completing 1 year P plus SI1. This one will be what P is what given, P is given 15,000 plus 1,500, so there will be what 16,500. this one is what amount after completing 1 years. okay, एक साल बाद जो 1,500 लगाया उसको 16,500 रुपए मिल जाएंगे. ठीक है, 1,500 रुपए क्योंकि इस पे क्या मिल गया 10% के हिसाब से ब्याज मिल गया. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड ईयर में क्या कर रहा है, 16,500 रुपए ये तो बैंक में पड़े हुए हैं, फिर से क्या कर रहा है 15,000 रुपए लगा दे रहा है अपनी तरफ से. क्वेश्चंस में कहा गया. ठीक है, 5 6 5 11 1 1 2 1 3, मतलब अब बैंक में शुरुआत के साल में कितने हो गए 31,500. सो दिस वन इज व्हाट योर स्टार्टिंग प्रिंसिपल. सो फाइंड SI2 इज व्हाट P2R T upon 100. okay, there is what given P2 is given 31,500 and rate is same 10% for complete 1 year divided by 100 will be cut here and we will have 31,500 rupees as SI ब्याज के रूप में मिलता है. ठीक है, so what is the amount after completing second year? Second amount there will be P2 plus SI2. What is P2? P2 is 31,500 plus this one is what 3150. So add this one 05516 3143. So 34,650 rupees after completing second year. Okay, now go for third years because in the questions asking for 3 years. Third years. So what is the third year? Third years we can find here for third year. Firstly, we have to find the principal P3 as 34,650 rupees. This one is already in the bank and that means is investing more 15,000 at every 15,000 at beginning of every month. Okay, तो 15,000 रुपए beginning of month पे यानी शुरुआत में लगा रहा है. ठीक है, 056549314. So this one is what this one is the 14,965 rupees after completing second year and beginning of the third year. तो थर्ड ईयर पे क्या करते हैं, SI निकालेंगे.
SI3 जैसे ही निकालेंगे तो हमने पता है कि 49,650 है और रेट अपना वही 10% पे है, कंप्लीट 1 ईयर, थर्ड ईयर के लिए 1 ईयर, क्योंकि एक एक साल का एक बार में हम निकाल रहे हैं तो ये रूल्स सारे बच्चों को पता है। सो दिस वन इज व्हाट 49,165 रुपया, दिस वन इज व्हाट 4,965 रुपीज एज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर्स। So what is the total amount after completing third year? Amount after completing third year, we will have 49,650 plus 4965. Add this one, 5, 6, 5, 11, 9, 6, 15, 116, 9, 4, 13, 1, 14, 4, 5. So 54,650 rupees at the एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड स्टार्टिंग में तो ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अभी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पे हमको इतना रुपए बैंक में उसको मिल जाएंगे, हमें नहीं बैंक में उसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे कहा था कि व्हाट विल बी हिज बैलेंस इन द बैंक एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो बैंक ऑफ थर्ड ईयर का उसका कितना लास्ट ईयर में हो जाएगा, तो लास्ट ईयर में आई थिंक ये आपने तो अब तक देख ही लिया है कितना, 54,615। ओके, so thank you and go for next questions. Okay, next questions है इसमें कि नहीं है, I think it, हाँ चलो एक क्वेश्चंस आपका लकली मिल गया। हमने समझा था कि या बाकी का क्वेश्चंस आज तो नहीं राइट है। ओके, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चंस फॉर टुडे। And Prasant borrowed 12,000 from Neha at 6% per annum interest compounded annually. After 2 years, he gave rupees 5,483 rupees and 20 paisa and an old computer. This one is old, looking like as odd. This one is old computer to Neha in order to clear his loan. Calculate the cost of the computer. Questions में क्या कहता है, बात समझे। ये बंदा है प्रशांत, ठीक है, और प्रशांत ये रही नेहा, ठीक है, गुड गर्ल्स है, बैड गर्ल्स है, जैसे भी है, अच्छी है। चलो मुंह बना लो, एकदम खींचिया के दांत निकाल लो, ठीक है। प्रशांत बारोड 12, प्रशांत ने क्या किए, इनसे जो है 12,000 रुपए का लोन लिया। किससे? ये रही नेहा और ये रहे प्रशांत, ठीक है। प्रशांत से 12,000 रुपए का लोन लिया, पर रेट क्या है, रेट वही है 6% पर दी है, अच्छी बच्ची है। आफ्टर सेकेंड ईयर ही गेव, फर्स्ट ईयर पे दी, पहला ईयर कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ। सेकेंड ईयर के बाद इसने क्या किया कि नेहा को 5,483 रुपया 20 पैसा लौटाया, ठीक है, इतना रुपया। एंड ओल्ड कंप्यूटर, और ओल्ड कंप्यूटर भी दे दिया, ठीक है। टू नेहा इन ऑर्डर टू क्लियर हिज लोन, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर। बड़ा बदतमीज लड़का था ये, बताओ, मतलब 12,000 रुपए भी तुम इनको नहीं चुका पाए, कंप्यूटर भी दिए, इतने पैसे भी दिए, तो वो 20 पैसे दिए, हद है। या क्या ये भी जो है बड़ी बेवकूफ़ लड़की निकली, या स्मार्ट लड़की कहें कि 8,000 रुपए में कंप्यूटर ले ली, लेकिन ली तो पुरानी। कंट्राडिक्ट है। अब ये स्मार्ट है या ये ओवर स्मार्ट है, अब ये आप ही बताओ कि प्रशांत और नेहा में कौन है। लेकिन मेरे समझ से इसके लिए डिग्रेडिंग बात है ना, कि ये तो मैं भी की मजबूरी रही होगी, इस बेचारे से लिया, 5,483 रुपया 20 पैसा लौटा पाया, जिम्मेदारी में खुद का ओल्ड कंप्यूटर भी खो दिया। नेहा यहाँ पे दांत खींचने निकली हुई हैं, दांत निकाल के। चलो आते हैं भाई, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए क्या कहा है कि यहाँ पे 12,000 रुपये हैं और रेट क्या है 6% पर, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, टाइम के दिया गया है 2 ईयर्स। आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ईयर्स ही इज गिविंग दिस 1 रुपीज़। ओके, तो अभी पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लेते हैं
फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। फॉर फर्स्ट ईयर जैसे नॉर्मली करते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर के लिए बात करें तो SI1 कितना हो जाएगा, 12,601/100। ये यहाँ से कटेगा, 12 छंग 72, 720 रुपये इंटरेस्ट आ जाएंगे फर्स्ट ईयर के। सो व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, 12,000 प्लस 720 रुपये। 720 रुपये अब यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। 027 12,720 रुपये, ये हो गए अमाउंट। अब यही अमाउंट जो रहेगा सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा फॉर सेकेंड ईयर। फॉर सेकेंड ईयर के लिए बात करें तो SI2 जो रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट ये हो जाएगा 12,720, 6 × 1/100। ये यहाँ से कटेगा तो ये जीरो काट दिए हैं तो हमारा ये यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो 127.2 × 6, 6 2 = 12, 6 7 = 42, 143, 6 2 = 12, 12 4 16, 6 1 = 6 17, 763 रुपये क्या आ गए सेकेंड ईयर के लिए आपका ब्याज आया, ठीक है, SI2। सो अमाउंट इज व्हाट आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ईयर, आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ईयर वी विल हैव अमाउंट 720 रुपया प्लस 763 रुपया 2 पैसा, 0.2362 7714 213 and this one is what 13,483.2 रुपीज़ मीन्स 20 पैसा। क्वेश्चंस में क्या कहा गया है कि क्वेश्चंस में कहता है कि लास्ट में ये बंदा जब ये नहीं चुका पाता अपना रुपया, तो है तो बदतमीज ही, ये पक्का बदतमीज है। कैसे, मैथमेटिकल में भी प्रूव करके दिखाता हूँ। ये प्रशांत एकदम बदतमीज है। कैसे, यहाँ पे देखना कि लास्ट 2 ईयर में इसने क्या किया कि इतना रुपया दिया और ओल्ड कंप्यूटर दिया, जो कि नेहा के कंप्लीट चीज़ों को पूरा, नेहा के पूरे हिसाब को बराबर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 5483 रुपया 20 पैसा, 5483 रुपया 20 पैसा प्लस कंप्यूटर दिया, और इस कंप्यूटर का जो दाम आया है वो कितना आया है, 13,483 रुपया 20 पैसा। कंप्यूटर का कितना आ जाएगा, 13,483 रुपया 20 पैसा माइनस 5483 रुपया 20 पैसा। यहाँ पे 0.00308040, 13 में से 5 गया 8। तो कंप्यूटर का प्राइस जो आ गया, कंप्यूटर का प्राइस भी पूछा है, वो आ गया 8,000 रुपये। ओके, क्वेश्चंस में था कि प्रशांत बदतमीजी क्यों किया, या फिर वो यूजलेस फेलो कैसे हुआ, बात समझे। ये बंदा कितना रुपया लिया था, 12,000 रुपये लिया था, 12,000 रुपये लिया। इस बच्ची ने दिया, अब इसके प्रति थोड़ा सिंपैथी गर्ल्स के प्रति दिखाएंगे, दांत भले निकाले। हाँ, नेहा ने, बात ध्यान से समझे। 12,000 रुपये लिया, एक पहले साल में इसने 0 रुपये दिए। मतलब कोई भी इंसान हो, 12,000 रुपये अगर आप कमाता तो 1,000 रुपये पर मंथ उसको लौटाता तो भी 1 साल के अंदर में कंप्लीट कर ले जाता। लेकिन इसने 2 साल के अंदर में भी पूरे रुपए न दे पाए। सोचने वाली बात है, अगर 500-500 रुपये देता तो भी ये दे देता और इसको अपनी कंप्यूटर न बेचनी पड़ती। इसके कंपैरिजन में तो ये तो अच्छी ना, इसने तो इसको उधार दिया इसके मौके पर, और इसने क्या किया, पहले साल में कुछ नहीं दिया, दूसरे साल में क्या दे रहा है इसको 5483 रुपया और
पैसे में भी 20 पैसा दे करके प्लस कंप्यूटर थमा दिया। अब ये तो पता नहीं कंप्यूटर अच्छा था कि नहीं, लेकिन इस हिसाब से बच्ची अच्छी है मेरे समझ से अकॉर्डिंग टू मैथ्स। यहाँ पे मैथ्स में इमोशंस की बात तो होती नहीं है, तो मैथ्स के हिसाब से ही बात सोचेंगे। ये मत कहना कि सर आप पार्शियलिटी कर रहे हो, मैथ्स के हिसाब से सोचते हैं। तो ये बच्ची अच्छी है, ये बुड़बक है, एकदम पूरी तरीके से डम्प है, डम्प है एकदम बेवकूफ़। चलो जो भी है, ओके थैंक यू। तो यहाँ तक आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब, नहीं करते हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम। बट हाँ एक बात और, कल का जो रहेगा हम लोगों ने ये फार्मूला स्टार्ट करेंगे 1+r/100 वाला, ठीक है। यहाँ तक का जो भी स्पेशल जितने क्वेश्चंस इस टाइप पे आपसे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं 9th स्पेशली फॉर CBSE के लिए, उतने तो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो बाकी का जो रहेगा, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे छूटते हैं कहीं पे भी अपने क्लास में क्लास टीचर से पूछिए। बाय द वे, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।